So today we will start with monophasic liquid dosage form. So monophasic liquid dosage form का मतलब क्या है? Mono means one phase. The solutions or the preparations which contain only one phase, they are called monophasic liquid dosage form. इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपकी जो मेडिकामेंट है इट इज़ सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट, तो सिर्फ आपको लिक्विड फेज नज़र आएगा, उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे. सो अ सॉल्यूशन इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन्स वन और मोर soluble chemical substances dissolved in a specified solvent, and there is only one phase system. There is only one phase. Monophasic means only one phase. So monophasic dosage form refers to liquid preparation containing two or more components in one phase system. दो या उससे ज़्यादा केमिकल्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, which are dissolved in the solvent. So it will represent only one phase. It will represent only one phase, and it is known as a true solution. इसको हम true solution बोलते हैं. So true solution is a clear homogeneous mixture that is prepared by dissolving a solute in a suitable solvent. So ये dissolved molecule हैं, ये आप जो देख रहे हो, these are dissolved molecule in a solvent. This all blue is solvent. Black dots, they are solute which are soluble. So the component of the solution which is present in large quantity, it is called solvent. जैसे water है, it is present in large quantity, it is called solvent. And which is present in small quantity, जो कि solid है, dissolved in water है, it is called solute. अब इसके advantages क्या हैं solution के? It is easy to swallow, so it is easier for children and old age people who cannot swallow tablets or capsules. उनको हम solution दे सकते हैं easily. There is absorption is fast, क्योंकि आपका जो मेडिकामेंट है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म द एब्जॉर्प्शन इज फास्ट, क्योंकि जो सॉलिड मेडिकामेंट है वो पहले डिज़ोल्व होगी फिर एब्जॉर्ब होगी, लेकिन जो आपकी सॉल्यूशन है उसमें मेडिकामेंट पहले ही डिज़ोल्व फॉर्म में है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी, उसका जो इफेक्ट है, एक्शन है, वो भी फास्ट हो जाएगा. इट इज़ होमोजीनियस देयरफॉर गिव यूनिफॉर्म डोज दैन सस्पेंशन. अभी हमने सस्पेंशन का चैप्टर पढ़ा था. सस्पेंशन में क्या है कि कहीं पर सॉलिड मेडिकामेंट ज़्यादा हो सकती है और कहीं पर कम हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन में बिकॉज इट इज़ इन डिजॉल्व फॉर्म देयर विल बी यूनिफॉर्म डोज. होल ऑफ द मेडिकामेंट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट, एंड इट इज़ सिंपल एंड फास्ट टू फॉर्मुलेट. इसको बनाना आसान है, क्योंकि आपने मेडिकामेंट को डाला सॉल्वेंट में और मिक्स कर दिया, वो डिज़ोल्व हो जाए.
It can be administered by different routes like oral, parenteral, enema for rectal use, for ear, for nose, और for some eyes. ठीक है, तो इन सभी रूट से आप इनको दे सकते हो. देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. दे आर बल्की, सो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर. बल्की मतलब एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल. एक स्ट्रिप में, टैबलेट की एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर 10 days if it is to be taken 1 tablet per day. लेकिन ओरल डोजेज इसमें सोल्यूशन में क्या होता है कि इट कंटेन्स अराउंड 100 ml. इसमें 100 ml है. 100 ml की बॉटल जो है वो इट विल कंज्यूम मोर स्पेस एंड इट विल बी हैविंग मोर वेट ऑल्सो. तो ट्रांसपोर्ट इसको करना और स्टोर करना मुश्किल होता है. मुश्किल मीन्स it is costly. Water is commonly used vehicle which is prone to microbial growth, so you need to add preservatives. When exposed to direct sunlight, it may undergo hydrolysis, so need to store in a cool and dark place. क्योंकि वाटर है और ज़्यादातर ड्रग्स जो है वो हाइड्रोलाइज हो सकती हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो इसको हमें डार्क और कूल प्लेस में स्टोर करना है. Drug stability reduced by hydrolysis or oxidation, so they have shorter expiry date as compared to tablets and capsules. And major signs of drug instability are color change. There can be color change, there can be precipitation. All these problems can be there due to presence of moisture, water. अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे. सबसे पहला है लिक्विड्स मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिक्विड्स मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन. इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला है सिरप, मिक्सचर, एलिक्सर्स एंड लिंक्सेस. और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है लोशंस. ये आपने सारे पढ़े हुए हैं पहले फर्स्ट ईयर में. लोशंस, लिनीमेंट्स, कोलोडियंस, पेंट्स, गार्गल्स जो माउथ में यूज़ करने हुआ, गार्गल्स, माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेंट्स. एंड लिक्विड्स टू बी इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज में है डाउशियस, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स एंड एनिमल. दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. इसमें सबसे पहला है लिक्विड्स मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, इट इज एन एक्वस प्रिपरेशन containing 66.7%. 66.7% है यहाँ पर. 66.7% to 85% sucrose with or without flavoring agent and medicinal substance. For example, chlorpheniramine maleate syrup या chlorohydrate syrup. These are the examples. Then elixirs क्या है? These are clear, aromatic, sweetened, hydroalcoholic solutions. Hydroalcoholic का याद रखना है आपने. Elixirs contain hydroalcoholic solutions like glycerin, mannitol, sorbitol. So clear, aromatic, sweetened, hydroalcoholic solution with or without medicinal substance intended for oral use. For example, dexamethasone elixir. The next है linctuses. Linctuses क्या हैं? These are viscous, liquid or oral preparations which are generally prescribed for relief of cough. For example, codeine linctus. And linctuses are to be sipped slowly.
इन द अनडाइल्यूटेड फॉर्म, इसको आपने अनडाइल्यूटेड फॉर्म में लेना क्योंकि इसका इफेक्ट थ्रोट में रिक्वायर्ड है। अगर आप पानी के साथ पीजोगे तो वो सारा का सारा स्टमक में चला जाएगा। तो दे आर टू बी सिप्ड स्लोली ताकि थ्रोट में एक थिन लेयर बन जाए और इसका सूदिंग इफेक्ट रहे। सो गार्गल्स, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट्स जैसे बीटाडीन गार्गल्स हैं, लिस्ट्रीन, मेंडल्स पेंट, ऑल दीज आर फॉर माउथ। लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब गार्गल्स हैं। So these are aqueous solutions containing antiseptic or antibiotics used to treat throat infections. Throat infection के लिए use करना है। They are available in concentrated form with direction for dilution with warm water before use. पानी, गर्म पानी से इसको डाइल्यूट करके आपने गार्गल्स करने हैं and it is to be thrown out of the mouth. फिर है माउथ वॉश। माउथ वॉश का पर्पस होता है प्लेजेंट टेस्ट या ऑर्डर प्रोवाइड करना है माउथ में आपने। सो माउथ वॉश इज अ एक्वस सॉल्यूशन विद अ प्लेजेंट टेस्ट और ऑर्डर यूज टू क्लीन एंड डीऑर्डराइज द बकल कैविटी। हेंस दे कंटेन एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेस like antiseptic phenol derivatives। लिस्ट्रीन माउथ वॉश आता है, जैसे उसका मेन पर्पस क्या है, माउथ को डीऑड्राइज करना है और एक फ्लेवर प्लेजेंट टेस्ट और ऑर्डर प्रोवाइड करना है माउथ के अंदर। नेक्स्ट है थ्रोट पेंट्स। थ्रोट पर एक थिन लेयर बनाएंगे ये थ्रोट पेंट्स। विस्कस है, इसलिए विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस used for mouth and throat infections, जैसे फिनोल ग्लिसरीन है या कंपाउंड आयोडीन है। these are used as throat paints। मोस्टली इनमें ग्लिसरीन हम ऐड करते हैं। ग्लिसरीन थ्रोट पेंट में ग्लिसरीन जरूर ऐड करते हैं क्योंकि ग्लिसरीन एक तो विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है ग्लिसरीन की, दूसरा इसका स्वीट टेस्ट होता है, तीसरा है पॉइंट की ह्यूमेक्टेंट है। ये ह्यूमेक्टेंट मतलब मॉइस्चर को कैच करके रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। तो इसके 3 एडवांटेज हैं ग्लिसरीन के। पहला विस्कोसिटी, दूसरा स्वीट टेस्ट और तीसरा ह्यूमेक्टेंट। मॉइस्चर को प्रिजर्व करके रखेगा, ड्राइनेस नहीं होने देगा थ्रोट में। उसके बाद है आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड एनिमास के एग्जाम्पल हैं ये, और ये हैं लिनीमेंट्स, लोशन एंड पेंट्स के एग्जाम्पल। सबसे पहले हम गार्गल्स क्या हैं। दीज आर एक्वा सॉल्यूशंस यूज्ड इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। यूजुअली दे आर प्रिपेयर्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद अ डायरेक्शन फॉर द पेशेंट टू डाइल्यूट विद वार्म वाटर। They are brought in intimate contact with mucous membrane of the throat. Then they are allowed to remain in contact with there for few seconds and then they are to be thrown out of the mouth. जैसे आप गर्म पानी में सॉल्ट डाल के गार्गल्स करते हो, सेम वही है। इट इज़ टू बी थ्रोन आउट। इसका कंटेनर जो है इट इज़ क्लियर ग्लास बॉटल विद प्लास्टिक स्क्रू कैप। देन लेबलिंग क्या है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये आपने ध्यान रखना है, पेशेंट इसको स्वेलो ना करे, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर फेंक दे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दे आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ऑल इंग्रेडिएंट्स इन सॉल्वेंट एंड देन मेकअप द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ ईजी टू यूज for the treatment of infections of pharynx just by gargling the solution using air from the lungs. It relieves soreness
in mild throat infection. Since it is supplied in concentrated form, so the container requirement is less. Size of the container requirement is less. And it is suitable for variety of drugs like antibiotics and antiseptic. डिसएडवांटेज क्या है? द इफेक्ट इज टेम्पररी और आपको ये 2 या 3 बार गागल्स करने पड़ते हैं दिन में. देन इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट्स हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड देन it may be swallowed by mistake. These are the disadvantages. Then we are having mouthwashes. These are non-sterile aqueous solutions with a pleasant taste and odor used for oral hygiene and to treat infections of the mouth. इसका जो कंटेनर है, it is a white fluted bottle. Labeling है, proper directions for mouthwash solution must be mentioned and it is to be mentioned that it is for external use only. It is not to be swallowed in large quantity. So all these directions are to be written on the label so that patient can be protected from ill effects of the mouthwashes. इसके advantages हैं, it is utilized to remove loosened debris and food from the mouth. It provides deodorant, refreshing, local analgesic and astringent effect. It is sometimes used to treat the mouth infections by using antibacterial agent also. Then disadvantage क्या? If pH is not monitored properly, they may damage mouth tissue. तो आपको pH properly monitor करनी है इसकी. Then classification of mouthwashes. They are generally classified as cosmetic, therapeutic, or a combination of both. Cosmetic rinses are commercially produced that remove oral debris before or after brushing, temporarily suppresses bad breath, diminishes bacteria in the mouth, and refresh mouth with a pleasant taste and flavor. ये तो क्या कॉस्मेटिक. दूसरा है थेरेप्यूटिक. थेरेप्यूटिक का मतलब है कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी है माउथ में, तो उसको ट्रीट करना है. So along with benefits of their cosmetic counterpart, they also contain added active ingredients. For example, some fluoride, chlorohexidine that may protect against some oral disease.